بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. رواه ابو داود فی سننہ وصححہ الالبانی. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے ساتھ ہی ہمیں دنیا کا سب سے معتبر دین، دنیا کا سب سے پسندیدہ دین، دین اسلام سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہے، کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی نعمتیں ہوں یا انسان کے استعمال کرنے کے تعلق سے نعمتیں ہوں، ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. آپ کے پاس اگر دنیا کی تمام چیزیں ہیں، دھن و دولت، روپیے پیسے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اسلام کی دولت نہیں ہے تو یقین جانیے آپ دنیا کا سب سے غریب ترین انسان ہے. اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ جھوپڑے میں رہتے ہیں، آپ کے پاس گھر گاڑیاں نہیں ہے، اس کے باوجود دین اسلام کی دولت اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان آپ ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز پہلے خطبے میں آج کے دور کا سب سے حساس موضوع، سب سے زیادہ جس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے اس ٹاپک پر بات کروں گا، اور انشاءاللہ دوسرے خطبہ میں رمضان کی مناسبت سے چند باتیں رکھوں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. میں نے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. گرچہ آیت کسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک عام سی بات کہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم یا اللہ رب العالمین کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ یا اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ، آزمائش، امتحان لاحق نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اسے کوئی دردناک عذاب نہ لاحق ہو جائے، کوئی خطرناک عذاب نہ پکڑے. آج کے اس جمعے میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، اور کس وجہ سے یہ چیلنجز ہیں. آج کے دور میں اگر بات کریں تو مومنوں کے سامنے اتنی زیادہ چیلنجز ہیں، ہمارے سامنے اتنی زیادہ پریشانیاں اور مصائب ہیں، اتنے فتنے ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے ہیں، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں، کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر مومنوں کا بایو ڈاٹا اٹھا کر دیکھا جائے، مسلمانوں کا ہر کنٹری میں، ہر دیش میں، ہر ملک میں اگر ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو بہت ہی افسوسناک ہے. ہمیں جو اسلام ملا تھا، ہمیں جو دین ملا تھا، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین کے لیے صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹا دی،
उस दीन को आज हम लोग बड़ा आसान समझ लिए हैं, जिसकी वजह से ये फितने हमारे सामने हैं। आज मैं सुबह रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूपी में एसटीएस ने, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उसने 31,000 मदारिस के बारे में ये लिस्ट योगी सरकार को दिया है कि इन मदारिस को अब बंद कर दिया जाना चाहिए। इससे पहले, कुछ दिन पहले, दारुल उलूम देवबंद के बारे में जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान का, उसके जानिब से यह नोटिस दारुल उलूम देवबंद को मौसूल होता है कि आपके मदरसे से यह फतवा सादिर हुआ है जिसमें बच्चों को जिहाद की तालीम दी जाती है, जिसमें बच्चों को दूसरों के खिलाफ उकसाया जाता है, जबकि वो फतवा 15 साल पुराना था। आप सोच सकते हैं कि मुसलमान को टारगेट करने के लिए मुसलमान के सबसे जो मजबूत किले हैं, जहां पर दीन का चलन होता है, जहां से दीन को चलाया जाता है, जहां से मुआशरा को सुधारा जाता है, जहां से समाज को अच्छा बनाया जाता है, उसको सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। वो है आपके मदरसे, वो है आपके मसाजिद, वो है आपके मकातिब। आप हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देख ले, आज बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसकी जगह पर मंदिर की तामीर हुई। आज बनारस में गैनवापी मस्जिद पर नजर है, कल अदीना मस्जिद पर नजर है, तो कल आपकी मस्जिद पर भी नजर ना हो, ऐसा क्या हो सकता है? इस बात की गारंटी क्या है कि मुसलमानों की शनाख्त, मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की आइडेंटिफिकेशन इन मसाजिद और मदारिस से है। इसलिए इन मसाजिद और मदारिस को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, अगरचे उनके साथ हमारा इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ के बावजूद भी दारुल उलूम देवबंद हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा है। उसको 15 साल पुराना फतवा लेकर टारगेट किया जा रहा। आप गौर करें कि किस हद तक मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के मदारिस, मुसलमानों के मसाजिद, मुसलमानों के आइडेंटिफिकेशन, मुसलमानों की दाढ़ियों, मुसलमानों की टोपी, मुसलमानों के कुर्ते पाजामे से उन्हें नफरत है, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये वाकयात, एसी डब्बे में, एसी कोच में कोई सफर कर रहा है, एक कोई सिपाही हिंदुस्तान का रखवाला, जो अपने आप को रखवाला कहता है, वो जय श्री राम का नारा लगाकर किसी मुसलमान को शहीद कर देता है। आप नफरत को जरा सोचें कि नफरत किस हद तक और किस लेवल तक चला गया। ये मुसलमानों के सामने परेशानियां, जबकि हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे आसान और सहल बनाया है, जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा मोतबर करार दिया है। इस्लाम के वो उसूल हैं, इस्लाम के वो जवाबित हैं, इस्लाम के वो कवायद हैं जो दुनिया के आपके किसी भी मजहब में वो कवायद और उसूल मौजूद नहीं है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को दहशतगर्दी और मुसलमानों को जिहादी जैसे अल्फाज से नवाजा जाता है। इन अल्फाज की अगर हकीकत देखी जाए तो इसका कोई माना नहीं है, जबकि इस्लाम यह ऐलान करता है कि अगर कोई इंसान किसी वजह के बगैर, किसी बिना वजह किसी इंसान का कत्ल कर दे, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, तो गोया कि उसने तमाम इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये हमारा मजहब सिखलाता है। लेकिन इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जो जहर है, वो जहर इस मुआशरा में, इस समाज में जिस तरह घोल दिया गया है, आज बच्चा बच्चा, आज सफर में, आज हजर में, आज गांव में, आज मोहल्लों में, तमाम जगहों पर इस्लाम के खिलाफ नारेबाजियां हो रही है। इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया उठाकर देख ले, आप सोशल मीडिया उठाकर देखे, मैगजीन देखे, आप न्यूज़पेपर पढ़े, रोजाना ऐसी खबरें मिल जाएंगी आपको जहां पर मुसलमान के खिलाफ तशद्दुद हो रहा है। आखिर वजह क्या है? इन तमाम चीजों की वजह क्या है? हमें गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। जब तक हम इनके तह तक नहीं जाएंगे, जब तक डीपली हम इन चीजों को नहीं लेंगे, जब तक इनके बारे में नहीं सोचेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि हम किस तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम किस तरह से अपने इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जिसकी वजह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, वो है मुसलमानों का अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करना। आप अगर सही माने में मुसलमान हैं तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करें। हम में से कितने लोग यहां पर मौजूद हैं जो आज फजर की नमाज पढ़ के आए?
हम में से कितने लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने यह तहैया किया है कि हम नमाज पढ़ेंगे? हम में से कितने यहां पर लोग मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन दाढ़ी से शर्माते हैं? हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान कहलाते हैं लेकिन मूंछों को बढ़ाते हैं, दाढ़ियों को शेविंग करके आते हैं। हम में से बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको टोपी लगाने में शर्म आती है, जिनको मौलाना के पास बैठने में शर्म आती है। यकीन जानिए, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आपको वईद दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको धमका दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये खबर सुना दी है कि फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि उन लोगों को डरना चाहिए, उन लोगों को खौफ करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं कि उन्हें दुनिया में कोई फितना लाहिक हो जाए या फिर उन्हें कोई दर्दनाक अज़ाब आ पकड़े। ये फितने, ये आपके इसको टारगेट करना, ये आपको टारगेट करना, ये आपके आइडेंटिफिकेशन पर सवाल उठाना, ये तमाम चीजें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की बुनियाद पर है। हमारी शनाख्त खत्म हो गई। हमने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में इस हद तक गिर गए हैं हम लोग कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दाढ़ियों को बढ़ाओ, मोछों को कतराओ, यहूदी की मुखालिफत करो। हम अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करते हैं, मोछों को बढ़ाते हैं, दाढ़ियों को काटते हैं। आप किस बुनियाद पर अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं? आपको सीए और एनआरसी के जरिए से क्यों नहीं रोंदा जाएगा? आपके मदारिस को क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? आपके मसाजिद को क्यों नहीं गिराई जाएंगी जब आप खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे? आपके घर में, आपके माशरा में, आपके नफ्स में, हमारे नफ्सों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाला कोई नहीं। आप जाने, आप मुआशरा का, आप समाज जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं, आप फतेहपुर हो, मंगना भीटा हो या आसपास के जो इलाके हो, उन गांवों में, उन घरों में, उन समाजों में आप जायजा ले। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं कि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस्लाम के करीब हो। आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि आप पर फितना ना हो, आप पर आजमाइशें ना हो? आपको किस तरह से आप सोचते हैं? दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा आज हमारे मुसलमानों में आम है, जिसकी वजह से हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है, वो है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया से मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। हम दुनिया की मोहब्बत में इस कदर मलव्वस हो गए हैं, दुनिया को इस कदर मोहब्बत करते हैं कि हलाल और हराम में तमीज नहीं। हम रोजी कमाते हैं, कोई हलाल और हराम में तमीज नहीं। भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है। दौलत के लिए बाप का कत्ल कर देना आम बात है, जमीन के लिए भाई का खून गिरा देना आम बात है। गाली गलौज तमाम चीजें हैं। अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत के करीब या फितने होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हजरत सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल कयामत जब लोग तुम्हारे मुसलमानों को लोग ऐसे समझेंगे जैसे तुम बहुत ही नादर हो, कमजोर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारा कोई वकार नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो सहाबा किराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल क्या हम लोग उस दिन कम होंगे, हमारी तादाद कम होगी, क्या मुसलमान कम होंगे? सहाबा किराम ने यह सोचा था कि हम 313 थे, बत्तो बदर के मैदान में 1000 काफिरों को शिकस्त दे दी थी, हमारी तादाद कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफिर हमसे डरते थे। जो लोग ना मुस्लिम गैर मुस्लिम होते थे हमारे ऊपर उंगली उठाने से डरते थे, हमारे ऊपर तशद्दुद करने से डरते थे, हमारा मुकाबला आराई करने से डरते थे। तो क्या वह दिन होगा जब हमारे ऊपर तमाम उम्मतें तदा अलैकुमुल उमम कमा तदा अलकलतु इला कसातिहा, जैसे खाने पर टूट पड़ते हैं लोग, खाना खाने के लिए जब दावतें होती है, जलसों के पिंडालों में खाने के लिए लोग किस तरह घुसते हैं, उस तरह तमाम उम्मतें मुसलमानों को काटेंगी, मुसलमानों पर टूट पड़ेंगी। तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, वलाकिन्नकुम कसीरून, तुम बहुत ज्यादा होंगे, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, लेकिन वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इस्सैल, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जैसे सैलाब आता है, पानी का बहाव आता है, उसमें जो मैल कुचेल होता है, उसमें जो झाग और फैना होता है, उसको बहा कर लेके चला जाता है, उस तरह तुम्हें बहा के लेके चला जाए।
वदालिका बिल वहनी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ये वहन की बुनियाद पर है। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वमल वहनो, अल्लाह के रसूल वहन क्या चीज है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करोगे और मौत को नापसंद करोगे। आज हम मुआशरा का हाल यही है, हम दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने मालो दौलत के लिए नमाजों को छोड़ देते हैं, सच बात कहने को छोड़ देते हैं, धोखाधड़ी, एक दूसरे से बेईमानी, एक दूसरे से मारकाट, एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे से रवादारी का मामला ना करना, ये तमाम चीजें हमारे मुआशरा में आम हो गई। सच है हमारे मुआशरा का, आप इसे झुटला नहीं सकते हैं। बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक गाने से मोहब्बत, हमारे मोबाइलों से मोहब्बत, हमारी तमाम चीजों से मोहब्बत है, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे आमाल दुरुस्त नहीं, हमारे अमाल दुरुस्त नहीं, इसलिए हम नहीं मरना चाहते। तीसरी चीज जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मुसलमानों पर मसाइब आ रहे हैं वो है इस्लाम से दूरी। अगर जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता फरमाया है उस दीन को आप अगर नहीं समझते हैं मेरे भाइयों, तो आपका कल्याण, आपका सक्सेस, आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति लमिनल खासिरीन, कि दीन अल्लाह के नजदीक अगर कोई मकबूल है, अगर जिस दीन के जरिए से फलाह व बहबूदी मिलेगी, किसी दीन के जरिए अगर कामयाबी मिलेगी तो वह दीन इस्लाम है। अगर इसके अलावा किसी भी दीन में अगर कोई कामयाबी तलाश करता है, अगर किसी भी दीन में कोई कामयाबी को ढूंढता है तो फलन युक़बल मिन, उससे ये कबूल नहीं किया जाएगा, उससे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरति लमिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा उठाने वाला होगा, नुकसान उठाने वाला होगा। इसका मतलब यह है कि अगर जो लोग इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम से दूर होकर यहूद व नसारा के रविश पर चले हैं, गाने बजानों को आम करते हैं, शादियों में बारातियों को आम करते हैं, शादियों में बिला वजह खर्च को आम करते हैं, मुआशरा में गाली गलौज को रवाज देते हैं, अपने बच्चों को दीनी तरबियत नहीं देते हैं, तो याद रखिए कि आप इस्लाम के अंदर नहीं आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर के पास होंगे, आपके उम्मती आएंगे, हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबाए किराम लोग आएंगे, फरिश्ते उनको हटा देंगे, अल्लाह के रसूल कहेंगे कि ये मेरी उम्मत है, तुम इन्हें क्यों हटा रहे हो? अल्लाह के रसूल को बतलाया जाएगा कि आपको नहीं मालूम कि आपके इंतकाल के बाद, आपके इस दुनिया से जाने के बाद इन लोगों ने क्या क्या किया है, इन लोगों ने क्या क्या बुराइयां अपने समाज में, अपने इस्लाम में जन्म दिया। इस्लाम की मोहब्बत अपने दिलों में जागुसी करें, इस्लाम की मोहब्बत। सहाबे इकराम का वाकया आप देख ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते थे, सही बुखारी की हदीस है कि इतनी इबादत करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर फूल जाते थे। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, आपके तमाम गुनाह माफ है, आपके अगले पिछले गुनाह माफ है, उसके बावजूद आप भी इतनी इबादतें करते हैं कि आपके पैर फूल जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा अफला अकून अबदन शकूरा, ए आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह के रसूल शुक्रिया अदा करने के लिए इतनी इबादत करते थे, हमें कितनी इबादत करने की जरूरत है? हमारी टूटी फूटी इबादतें, हमारी नमाजें, हम सिर्फ हफ्ते में जुमा पढ़ने आते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम का दौर देखें, अल्लाह के रसूल 3 सहाबी को एक जंग में भेजते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा और एक सहाबी हजरत जाफर तैयार रदियल्लाहु ताला अन्हुम को भेजते हैं, और एक के बाद एक को सिपह सालार कमांडर बनाकर भेजते हैं। आप यकीन करें कि सहाबा इकराम दिन भर जंग करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की जब बारी आती है, सुभान अल्लाह, दिल कांप जाता है, धड़कनें तेज हो जाती है। अपने दिल पर हाथ रखिए और जरा सोचिए, वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। उनका एक हाथ काफिर काट देते हैं, दूसरी हाथ से इस्लाम का झंडा पकड़े हैं, दूसरे हाथ को भी काट दिया जाता है, अपने पैर से इस्लाम का झंडा पकड़े हुए हैं, पैर को काट दिया जाता है, दूसरे पैर से इस्लाम का झंडा पकड़े हुए हैं, उसके बाद भी उनके दोनों पैरों को काट दिया जाता है, अपने सीने से इस्लाम का झंडा पकड़े हुए हैं। जब तक शहीद नहीं हो गए, जब तक उनको काफिरों ने शहीद नहीं कर दिया, इस्लाम का झंडा बुलंद रखा।
सहाबा में से 2 सहाबी को अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन किया कि सहाबा की पहरेदारी करे। एक सहाबी ने कहा कि भाई आधी रात मैं जाग लेता हूं, दूसरी रात में तुम जाग लेना। दोनों ने बारी तकसीम कर ली। अल्लाह के रसूल और तमाम सहाबा सो रहे हैं। एक सहाबी नमाज पढ़ने लगे, कहीं से तीर आई, उस सहाबी को लग गई। वो सहाबी नमाज में मशगूल रहे। जब अल्लाह के रसूल को सुबह ये वाकया पता चला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तुम्हें कौन सी चीज माने थी कि तुमने नमाज नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह, जवाब सुनिएगा। उस सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं ऐसी सूरत की तिलावत कर रहा था कि इन्नी ला उहिब्बु अन अक़्तअहा, जिसे मैं बीच से छोड़ने को पसंद नहीं करता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो कौन सी सूरत है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, वो सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है। ये एक सूरत से इतनी ज्यादा मोहब्बत, तो हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, हमें अपने रब से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। आप जरा गौर करें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक जगह पेशाब करने ऐसे बैठ गए। उनके शागिर्दों ने पूछा कि आप यहां पर पेशाब नहीं लगे, उसके बावजूद बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पेशाब किया था, इसलिए मैं बैठ गया। इत्तिबाए सुन्नत देखे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास ये फैसला आया कि हजरत उमर ने ऐसा कहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर गुस्सा गए और फरमाया, अम्र अबी युत्तबा अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे बाप की पैरवी की जाएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें इस्लाम से मोहब्बत करनी है, हमें इस्लाम से कुर्बत बनाना है। जब तक आप इस्लाम को नहीं अपनाएंगे, इस्लाम आपको नहीं अपनाएगा। हमें इस्लाम को अपनाना है। तीसरी चौथी चीज जिसकी वजह से मुसलमानों पर ये मसाइब हैं, वो है मॉडर्निज्म। यानी आज के दौर में मुसलमान ये समझता है कि इस्लाम जिस मजहब को हम मान रहे हैं वो कामिल नहीं है, इस मजहब में कमी है, इस मजहब में खामी है, इस मजहब को मॉडर्न करने की जरूरत है। क्या मौलाना लोग, आप लोग टोपी कुर्ता पहन के अभी भी घूम रहे हैं, लोग दुनिया चांद पर पहुंच गए और आप लोग अभी भी टोपी कुर्ता पहन के घूम रहे हैं? यह सवाल पैदा होता है। मौलाना लोगों को जो आलिम दीन है उनको कमजोर समझा जाता है। ये मॉडर्निज्म का चक्कर है मेरे भाइयों, आप इस चीज से निकले। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में बताया गया कि आरएसएस, हिंदुस्तान का जो हिंदू का संगठन है, उन्होंने मुसलमानों पर कब्जा करने के लिए एक कंट्री है, आप लोग नाम सुने होंगे कि नहीं, उंदुलुस जगह का नाम है, आप लोग सुने हैं कि नहीं? अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर शेर है इसके बारे में। इस जगह पर मुसलमानों ने तकरीबन 650 साल तक हुकूमत की है। उसके बाद आज वहां पर मुसलमानों की तादाद सिर्फ 0.3% और बाकी क्रिश्चियन है। तो हिंदुओं ने सोचा कि हिंदुस्तान पे मुसलमानों को सफाया करने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने ये सोचा कि वहां पर जाके रिसर्च करते हैं कि आखिर मुसलमानों का खात्मा और सफाया कैसे हो गया। इतनी ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद आज मात्र 0.3% इस तरह के मुसलमान हैं। कुछ मुसलमान बचे हुए हैं, चंद मुसलमान बचे हुए हैं। तो उन्होंने जब वहां पर रिसर्च की तो उन्हें सबसे जो अहम बात मिली वो ये है कि वहां के लोग जो थे वो अपने उलमा को नहीं मानते थे, अपने कायद को नहीं मानते। आज हाल हिंदुस्तानी मुसलमानों के हाल यही है। हमारी उम्र 70-80 साल हो गई है, हमारी उम्र 40-50 साल हो गई है, हमारी उम्र 30 साल हो गई है, हम कुरान पढ़ना नहीं जानते। कहां से आप सीखेंगे? आप अपने कायद और रहबर के करीब नहीं बैठेंगे, आप उलमा के पास नहीं बैठेंगे, उलमा की जात को आप खराब जानेंगे, मदारिस के तलबा को और मदारिस की तालीम को फकीरी जानेंगे, गरीबों की तालीम जानेंगे। अल्लाह की कसम, इस कौम की रहबरी, इस कौम की लीडरशिप कोई नहीं कर सकता है जब तक उलमा ना खड़े हो। अगर उलमा ना खड़े हो तो आपके जनाजे खाली पड़ जाएंगे, अगर उलमा ना खड़े हो तो आपकी शादियां और आपके जो घर में इस्लामी रसूमात होते हैं, जो इस्लामी चीजें होती है, वो तमाम चीजें खाली हो जाएंगी। उलमा है जिन्होंने, उलमा ने इन्होंने इस्लाम की बुनियाद को और इस्लाम के उसूल को थाम कर रखा है, जिसकी बुनियाद पर आज इस्लाम कायम है, इस्लाम बाकी है। अगर ये उलमा पीछे हट जाए, अगर ये उलमा पीछे हट जाए, अल्लाह की कसम जाने कि तमाम माशरा, तमाम समाज, तमाम गांव, तमाम मोहल्ले और तमाम देश और तमाम दुनिया खत्म होने वाली है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि कयामत के करीब अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कल कयामत के करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को उठा लेगा। इल्म के उठाने की बुनियाद पर जो लोग, जो, इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दुआ करें
क्या आप जो मॉडर्निज्म के चक्कर में टखने से नीचे पैंट पहनना, दाढ़ियों को शेविंग कर देना, मोछों को कतराना, कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनना, हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चे रास्तों में बैठकर देख रहे हैं फ्री फायर में मशगूल है। छोटे छोटे बच्चे फ्री फायर में मशगूल हैं और उनका मुस्तकबिल क्या होगा उन्हें खबर नहीं है। और पांचवी चीज जो हमारे शेरशाहवादी कम्युनिटी में खास कर मिलती है, जो चीज वो है वक्त का जिया, यानी टाइम और समय को बर्बाद करना। हमारा ज्यादातर वक्त कहां गुजरता आप लोगों को पता है? चाय की दुकानों में। कहां पर? चाय की दुकानों में। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान आज चाय की दुकानों में तमाम औकात को बर्बाद करते हैं। हमारे स्कूल के सामने चाय की दुकान है, उससे मुझसे बेहतर कोई उसको नहीं देखता। मैं बहुत ज्यादा गौर करके देखता हूं कि फालतू बातों में दुनिया कोई मतलब नहीं उस बात से, उस बात में मैं घुस जाता है। जिन चीजों का इल्म नहीं, सारे फतवे वहीं से सादिर होते हैं। जिन चीजों का इल्म नहीं उसके बारे में भी जबान दराजी करते हैं, लोगों पर क्रिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिक्स पर बातें होती है, फिर भी मुसलमानों की रहबरी करने वाला कोई नहीं है। पॉलिटिक्स पर सारी बातें होती है, ममता को जिताना है, फला को जिताना है, इसको जिताना है, लेकिन शेरशाहवादी का कोई नहीं, हमारी लीडरशिप करने वाला कोई नहीं। आप यकीन जानिए, आप जो वक्त चाय की दुकान पर दे रहे हैं, यह सबसे ज्यादा कीमती वक्त होता है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। हमने कभी सोचा है कि मगरिब के बाद जब हम घर से निकल जाते हैं एक कप चाय पीने के लिए और रात 11 बजे घर वापस आते हैं, तो हमारे बच्चों का क्या हाल होता होगा, हमारी बीवी का क्या हाल होता होगा? क्या वो कहीं दूसरी जगह ना चले जाए? क्या हमारे बच्चे किस चीज पर मशगूल है? कभी हमने गौर किया है? कभी नहीं गौर किया। क्या आपके बच्चों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल, क्या आपने कभी उनके सर्च ब्राउजर को सर्च करके देखा है? आज मुस्लिम नौजवानों को किस तरह से सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में फंसाया जाता है, आप गौर तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से इसका एल्गोरिदम काम करता है। मुस्लिम नौजवानों को ऐसे वेबसाइट्स मुहैया किए जाते हैं, ऐसे सोशल नेटवर्क्स मुहैया किए जाते हैं, ऐसे वेबसाइट्स डिजाइन किए जाते हैं जिस पर मुसलमानों के दीन और अकीदा पर डाका डाला जाए। आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की है। आप कहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने मुआशरा में अपने बच्चों को अच्छा पाएं? आप बड़े होंगे, आपको लात मार के घर से निकाल देगा आपके बच्चे। क्यों नहीं निकाले? आपने उसको तालीम दी है कि मां बाप की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, नाफरमानी से बचो। आपने तालीम नहीं दी है तो आपके बच्चे तो निकलेंगे ही ऐसे। इसलिए हमें मॉडर्निज्म के चक्कर में हमें जो औकात के जिया है उससे बचने की सख्त जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, या इलाहुल आलमीन तू हम तमाम मुसलमानों को दीन की सही समझ अता फरमा। अल्लाह हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम चैलेंजेस को तू सर फरमा, अल्लाह उनका हल फरमा अल्लाह, और उन चैलेंजेस का हमें सामना करने की तौफीक अता फरमा। हमें दीन से जुड़ने की तौफीक अता फरमा, हमें उलमा से जुड़ने की तौफीक अता फरमा, हमें मसाजिद और मदारस की हिफाजत करने वाला बना। अल्लाह तू हमें सबसे बेहतर जानता, अल्लाह तू हमें सबसे ज्यादा जानता, अल्लाह तू हमारे हालों को सही कर दे अल्लाह, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। রোজার সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, যা মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সর্বপ্রথম জিনিস কি, রোজা ফরজ জিনিস, যেটা প্রতিটা বালিগ মুসলমানকে, নর হোক নারী হোক, সবাইকে রাখতে হবে। রোজা রাখা ফরজ। যে ব্যক্তি জেনে শুনে রোজা রাখবে না, ওর কাবিরা গুনাহ। আর যদি ওটাকে অমান্য করে, রোজাকে অমান্য করে, না মানে, তাহলে ও মুসলমান থাকবে না। কেউ রোজা রাখে না সুস্থির জন্য, আর একজন রোজা রাখে না যে মানে নাও, তাহলে ও কাফের, ও মুমিন লয়, ও মুসলমান লয়, ও কাফের। আর ও মুরতাদ, ইসলামকে অমান্য করে দিয়েছে, ইসলামের একটা খুঁটিকে অমান্য করে দিয়েছে। ইসলামের 5টা খুঁটির মধ্যে, ইসলামের 5টা ভিত্তির মধ্যে একটা হলো রোজা, আসিয়াম। আর রোজাটা শুধুমাত্র একজনের উপরে ফরজ করা হয়নি, যতগুলো উম্মত এর আগে থেকেছে ওদের উপরেও ফরজ করা হয়েছে। রোজার মানে কি হলো? সওম মানে হলো যে আপনাকে যেটা ফজরে আমরা খাই, যেটা আমরাকে ফজর বলি, যখন ফজরের আজান হবে তখন থেকে নিয়ে সূর্য ডোবা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া
এবং যাবতীয় যা থেকে রোজা ভেঙে যায় এগুলো জিনিস থেকে বিরত থাকা, দূরে থাকাকে রোজা বলে। রোজা ভেঙে যেতে পারে অনেকগুলো জিনিস আছে, যেরকম স্ত্রীর সাথে মিলন করলে, তারপরে খাওয়া দাওয়া করলে, কোনো জিনিস পান করে নিলে, ভাইটামিনের ইনজেকশন, যেগুলো ইনজেকশনে কোনো মানুষকে এনার্জেটিক মানে এনার্জি দেয়, যেগুলোতে বডিতে শরীরে তাকাত আছে, পাওয়ার আছে, ওগুলো ইনজেকশন নিলে, অথবা এই ধরনের অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো থেকে। তারপরে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো থেকে রোজাতে বাঁচা উচিত। বেশি করে মানে যেরকম আমরা উজু করি তো অনেক করে নাকে জল দিতে অথবা মুখে জল দিতে মানা। তারপরে অনেকগুলো ওলামা আরো অনেক কিছু মানা করেছে, তো এগুলো জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে। তৃতীয় কথা হলো কি, রোজার মাস খুব বরকতের মাস আর খুব অনেক নেকির মাস। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের খুব ইন্তজার করতেন। আর আল্লাহ রসুল বলেছেন যে কিয়ামত মানে কবরে যখন মানুষ চলে যায় তো কবরে অনেক দিক থেকে আযাব আসে, তো ওর মধ্যে ওয়াসাউম জুন্নাতুন, আল্লাহ রসুল বলেছেন যে রোজা মানুষের ঢাল হিসেবে কাজ করে। যুদ্ধতে যেরকম টারওয়ারিকে বাঁচার জন্য ঢাল ব্যবহার করে, ওরকম রোজাটা মানুষের কবরে ঢাল হিসেবে ব্যবহার হয়। তো আমাদেরকে রোজা রাখতে হবে। আর রোজাতে সব থেকে একটা বড় জিনিস আছে যেটার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলেছেন, মান কামা রমাদান ঈমানান ওয়া ইহতিসাবা গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহ। যার আগের গুনাহ যতগুলো গুনাহ আছে, ছোট গুনাহ, কাবিরা গুনাহ লয়, যেগুলো বড় গুনাহ লয়, ওগুলো গুনাহ ছাড়া ছোট ছোট গুনাহগুলো আছে, এগুলো সমস্ত মাফ করে দিবে যে ঈমান আর নেকির নিয়ত করে রমজান মাসে তারাবিহ পড়বে, কিয়ামুল লাইল। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে রমজান মাসে ভালো করে ইবাদত করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ এই রমজান যেন আমরা সবাই পাই। আল্লাহ আমরা যেন বেশি বেশি করে ইবাদত করতে পারি। আল্লাহ যেন আমরা যারা রোজার আগে মারা গেছে আল্লাহ তারা কি অবস্থায় আছে, আল্লাহ আমাদের কাউরির ভাই, কাউরির বোন, কাউরির বাবা, কাউরির মা, কাউরির আত্মীয় মারা গেছে আল্লাহ, তারা কবরে কি অবস্থায় আছে আল্লাহ আমরা জানি না। আল্লাহ তুমি তাদের ছোট ছোট ভুলগুলোকে মাফ করে আল্লাহ তাআলা তুমি তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে আলা মাকাম দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমরা যারা গুনহগার আল্লাহ তুমি আমাদের গুনাহকে মাফ করে আমাদেরকে দ্বীনের কাছে আসার তৌফিক দান করো। আল্লাহ যেগুলো আমরা ইবাদত করছি আল্লাহ, এই ইবাদতগুলো হয়তো আমাদের পরিপূর্ণভাবে হয় না আল্লাহ, তুমি এগুলো আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ। আল্লাহ যারা নামাজ পড়েন আল্লাহ তাদেরকে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ। আল্লাহ যারা মুসিবতে আছে, পেরেশানিতে আছে, যারা অন্য অন্য ধরনের বিভিন্ন ধরনের অসুখে আছে আল্লাহ, তাদের অসুখকে আল্লাহ তুমি শেষ করে দিয়ে আল্লাহ তুমি তাদেরকে সুস্থ করো আল্লাহ। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.